friends, what we understand with the Vata, Pitta, Kapha? What is our general understanding? So we understand gastric formation in our stomach with the word Vata, and acidity or gastritis with the word Pitta, and rhinitis, cold or cough with the word Kapha. But this Vata, Pitta, Kapha is much more than that. They are very subtle. We cannot see with our naked eyes. And these three doshas are, there are in number of three, right? So it is called also Tridosha. And this is the fundamental energy or basic of Ayurveda. It is said that it is three pillars of Ayurveda, main pillars of Ayurveda. They are very significant role in Ayurveda. So what is Ayurveda? So Ayurveda depicts its meaning itself. Ayusha Vedo Ayurveda. So science which helps to understand what is life, how to live our life, right? So Ayurveda has been practicing in India over the centuries. It is one of the ancient medical science. And it is directly derived from Lord Brahma. And when on earth people were suffering from various diseases, our Rishi Muni, who were scientists as well as meditators, they worshipped Lord Indra, and they gained this knowledge from Lord. So this is a intellectual knowledge, intellectual as well as intelligence. And वो जब डिस्क्राइब किया गया या एक दूसरे में सिखाया गया, तब जितना सटीक और सही था, आज भी उतना ही वो सटीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है. So it's a wisdom. So friends, I have made a PPT for this session. So I would like to share my screen here. So today's topic is significance of balanced Vata, Pitta, Kapha. So what is the significance of, what is the importance when they are in balanced state? It is very important to have these doshas a very balanced state, because when they are in equilibrium, they maintain our health. And when they are in imbalance, they create various diseases in our body. So today we will understand how they play an important role in our life. So today's contents are how Ayurvedic approaches towards the health. It is a holistic way towards the health. And we'll understand Tridosha, Vata, Pitta, Kapha, and Panch Mahabhut correlation. And what are the characteristics of these three dosha, and what kind of role they play in our daily life, and how this three dosh makes our prakruti, our natural state of being. It is remains same from our birth until the death, and how we maintain, or if we have imbalance of this dosha, what regimen should we follow to be healthy. So let's see Ayurveda's holistic approach towards the health. So it is said in Shushu Samhita that Samadosha Samagnisya Samadhatu Malakriya Prasanna Atmendriya Manaha Swastha Ityabhidiyate. What does it mean? It says that Samadosha means we have three physical dosha, Vata, Pitta, Kapha, three mental dosha, Sattva, Rajantam. They should be in equilibrium. Samagnisya, there are 13 fire which is described in Ayurveda, and main is the digestive fire. So they should be in equilibrium. Samadhatu, dhatu means our biological tissue. There are 7 dhatus according to Ayurveda. Rasa, Rakta, Mas, Med, Asthi, Majja, Shukra. And if we correlate to the modern science, we can say there are the biological tissues. They are chyle, plasma, blood tissue, fat tissue, adipose tissue, muscular tissue, bone marrow, bones, and sperm in male and ovum in female. So they should be in equilibrium state. And malakriya means our excretory system, sweating, urine, stool, this excretory system working well. And when our atma means soul, indriya means 5 jnanendriya, 5 karmendriya, and mana, they all should be in
equilibrium, then we can say that we are healthy. So Ayurveda focus is not only on the physical health, but it also focus on mental, emotional, spiritual, and social. So this is the holistic way towards the health. And now we'll understand what is Vata, Pitta, Kapha, and Panch Mahabhut correlation. We all know that our body is made up of 5 elements, and the physical world is. So our body is replica of the physical world, right? And what is dosha? So which decays or which brings destruction or which vitiates, and they, when they are in equilibrium, they maintain health, and when they are in equilibrium, they create diseases. So if we correlate these 3 dosha with the 5 elements, which are ether, air, water, fire, and earth. So if we talk about the vata, it contains of ether and air mainly. So we can correlate it with our nervous system or musculoskeletal system. And when they are in balance, they are responsible for gati. Gati is a Sanskrit word which means movement, circulation, communication, or locomotion. And when this vata is disturbed, it creates pain in our body. And if we talk about pitta, it contains fire and water. So this 3 dosha signifies the characteristics according to their 5 elements. So pitta is connected to the digestive system or endocrine system, and it brings transformation, metabolism, and digestion. And when it is balanced, it brings burning to our body. And kapha contains water and earth, so it gives bulk, strength to the body. So it is responsible for our immune system. So it gives defense, stability, our bodily structure, lubrication in joints. And when it is imbalanced, it brings itching and congestion to our body. So these are the correlation between Tridosha and Panch Mahabhut. So we'll see first of all what are the characteristics these 3 dosha have, and according to these traits, they personifies various symptoms in our body. So we can figure out how they work in our body, and according to this characteristics, they create various prakruti or body type. So it is said in Ashtanga Sangra that Tatra Ruksho Lagu Shitas Khara Suksma Chalo Anilaha. It is the attributes of Vata. So Vata has this quality: dry, light, cool, rough, subtle, and mobile. And when these characteristics are disturbed, we can use exactly opposite characteristics to bring balance. For example, if we suffering from dryness in our body, we can balance by using moist and oily substances. So we need to focus on this, that these are the basic characteristics and how we can bring balance. So moist, oily, heavy and grounding, warm, smooth, bulkiness and stillness brings equilibrium to the vata. And we see about the attributes of pitta. It is contains of fire and water, as we have seen. Pitta sasneha tikshnoshnam lagu vistram saram dravam. So pitta personifies slightly oily, sharp, hot, light, stinky, mobile, and liquid. And it can be balanced by its exactly opposite dosha, guna: dryness, dull, cold, heavy, fragrant, immobile or stable, and solid. And we see about the kapha, which contains earth and water. So it is said in Ashtanga Hridaya, Snigdaha Shito Guru Slakshana Mrutsanaha Sthiraha Kafaha. Means kapha has this kind of qualities like oily, cold, heavy, slow,
smooth, sticky, and stability or stillness. And what are the opposite guna? Dry, warm, light, swift, rough, non-viscous, and mobile. So these are the attributes of this Tridosha. Now, what kind of role they play in our life? So if we think about the cycle of the day, so there are 24 hours in day. So each part of day is divided in 3 parts of 4 hours. If we start from the 6 o'clock in the morning, so 6 a.m. to 10 a.m. it is a Kapha Kala. 10 to 2 is a Pitta Kala, and 2 to 6 is Vata Kala. So between 6 to 10, it is a time of exercise, excretion, excretory systems working, and having light breakfast or getting ready for the day. And 10 to 2 is a Pitta Kala. So Pitta is on the high at 12 o'clock. So we should consume greater portion of our meal around 12 o'clock. So it can be digested easily. And it is a timing of planning. So usually we should plan our day according to that. And then 2 to 6 is a time of Vata. So it is a time of communication or execution of the planning what we have done earlier. And evening 6 to 10 is again a Kapha Kala. So during that time, our bodily movement gets slower down. We should consume light meal so it can be digested easily. And we should consume our food before 8 o'clock. And between 8 to 10 is a time of meditation or preparation for sleep. We should sleep before 10 o'clock. And then again, 10 to 2 a.m. is a time of Pitta Kala. So between 10 to 12 or 10 to 2 is a time of Pitta Kala. And during this time, we should have a sound sleep. This is a time of our subconscious mind or colorful dreams. And digestion becomes easier on this time. So if we still stay awake during this time, we can feel hungry, and because it is a Pitta Kala, so we should not be awake at that time. And when we awake, we can feel hungry, and we will have the craving of snacks at that time, and the next day we will be suffering from indigestion. And 2 a.m. to 6 a.m. is a time of Vata Kala. So between 2 to 4 a.m. We will be having light sleep, and between 4 to 6 is a time of wake up and doing meditation, pranayam, yoga. And if we meditate or doing pranayam, yoga, this positive energy stay with us during whole day. And we should wake up before 6 o'clock, because when we wake up after 6 o'clock, we can fall into the Kapha Kala, and our digestion system will be hindered, and we will be feeling more lethargic throughout the day. So this is the Ayurvedic cycle of the day. So now the second point is season or Rutucharya. Where there are 6 seasons according to Ayurveda. Mainly is winter, summer, and monsoon. And if we divide in 6 parts, there are Shishir, Vasant, Grishma, Varsha, and Hemant. So majorly it is considered that in hot season we should follow that kind of regimen, and during winter or monsoon there are specific regimen which is described. If we talk about the winter season, which falls November to January, and so this is the season of Hemant. So right now this is a December, right? So this is a Hemant, and this is a aggravation of Vata dosha. So we should consume. We have seen that characteristics of Vata: Lagu, Shita, Khara, Sukshma, Chala, right? So we should consume heavy food. We should
include sweet, sour, and salty taste in our food to keep the vata in balanced state. And during this time, we will be having sesame seeds or sesame chikki or peanuts, and that we call, say, in Vasana, in Gujarati Vasana. So we should consume heavy diet during this season to keep in mind our digestion, so we can bring balance to our body. And if we talk about the place, there are various places in which the hot places, we should follow the regimen for pitta, and when the places which are very cold or windy or where there is a snow, we should follow the regimen of vata and kapha. And we talk about the age. Age is divided into three parts. Early balyavastha, early age. In this age, kapha is predominant. So we have also seen that various cough disorders happens during this age. And middle age is considered as pitta age, and older age is considered as vata age. So we should keep in mind this age factor too. And we talk about the primary sites of the body. So our body is divided in three parts. If we divide in three parts, the lower part majorly is vata, middle part is pitta, and upper part is kapha. And according to that, these three dosha, we have different kind of prakrutis. We have 7 kind of prakriti. We'll see later in detail. And Shadrasha, Ayurveda has said that we in each and every food there are 6 tastes. It is sweet, sour, salty, pungent, bitter, and astringent. And they play an important role to balance our dosha. We'll see in regimen slides. And there are various disorders as per vata, pitta, kapha. As per Ayurveda, there are 80 types of vata disorder, 40 types of pitta disorder, and 20 types of kapha disorder. And if we look at the treatment part, there are described shaman chikitsa and shodhan chikitsa. So when we have dosha imbalance in our body, Ayurvedic physician may recommend medicine, herbal medicine. And if even though after doing medication or conservative treatment, this is not cured, then we should apply the panchakarma or shodhan chikitsa. When dosha are much aggravated in our body, they should be expelled by panchakarma treatment. And the beauty of panchakarma is, if I give you one simple example, we talk about the virechan. In virechan, the patient is having multiple times of defecation. It's a therapeutic defecation. So even after doing that, they cannot feel weakness or any electrolyte imbalance. This is the beauty of this panchakarma. On the contrary, they do feel more light. So these are the role of Tridosha in our life. Now we'll see how this Tridosh plays an important role to create our physical constitution. As per Tridosha, we have 7 types of constitution. So there are singular, that are Vata Prakriti, Pitta Prakriti, Kapha Prakriti. And when they are in dual combination, they create another 3 types of Prakriti: Vata Pitta, Pitta Kapha, and Vata Kapha. And the 7th one is Samadosha or balance. This is the Samadosha or balanced or Tridosha Prakriti is very rare, and it is the best Prakriti. In that Prakriti, all 3 doshas are in equal proportion. And this Prakriti, how this Prakriti is responsible. There are various principal responsible factors who creates the Prakriti in our body. It is also Vat Pitta Kapha has also an important role in making the Prakriti. For example, if we look at the time and season of the conception, so we have seen earlier that
various season and time in which the doshas predominancy are playing a part. So this is also play a role. And what are the uterus dosha during that, or sperm and ovum condition, what kind of dosha they have, or the maternal food which the lady will be having during the 9 months of pregnancy. So all these factors plays an important role in creating a prakriti. And this prakriti, if we talk about the two different people of vata pitta, for example, so it is not necessary that there is not any fixed proportion of any dosha in dual prakriti. For example, if vata pitta prakriti, 2% are having various combination, various proportion. If one person will be having 85% vata and 15% pitta, then the another person will be having 70% of vata and 20% of pitta and 10% of kapha. So predominant dosha plays an important role in this. If we the predominant we talk about the dual prakriti, vata is predominant, means 70% of vata characteristics in one person, and 80% 30% is kapha or pitta. So it is called vata pradhana pitta prakriti. And if pitta is 70%, for example, or 75%, vata is 20 or 25%, and kapha is 5 or 10%, we can say that it is pitta pradhan vata prakriti. So everyone is unique in this way as per Ayurveda. Now we'll see what kind of prakriti we have. So I'll request you all to take a pen and paper so we can figure out what kind of prakriti. This is a rough idea, so we can figure out one by one. There are various characteristics as per vata, pitta and kapha. So let's begin. If we see about the body structure, hope everyone is understanding. I'm not going so fast. Hello? Yes, Dr. Asha, Yes. you are Yes. on the right speed. Just there is one request. If you can translate the things in between in Hindi also, that will be great. Okay, thank you. For few of our audience is in this business. Yeah, sure. ओके सो पेन पेपर ले लीजिए अपने साथ, और ये जो 1 बाय 1 सिम्टम्स है हम देखते जाएंगे कि आप टिक करते जाइए, जैसे कि ये देखते हैं हम कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसमें आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं. तो वो ये क्वेश्चनर करने के बाद जब अराउंड 28-29 क्वेश्चनर है, तो यू कैन फिगर इट आउट कि कौन सी प्रकृति है, रफली वो आइडिया आ सकता है. सो इफ वी सी द बॉडी स्ट्रक्चर, Vata people will be having thin, lean, and they cannot gain weight easily. They lose weight easily. Pitta Prakriti will be having moderate body structure, and they also don't gain weight easily. But if they want, they can lose the weight also. And if we talk about the Kapha, their body structure will be large, sturdy, and they will easily gain weight but cannot lose weight easily. So these are the body structure. And if we talk about the bone structure, so हड्डियां कैसी होगी वात प्रकृति में. So there will be light and smaller structure. Pitta will be having medium, and the kapha are heavy, strong, sturdy. एंड कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा. सो वात प्रकृति वाले का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्कर होगा, थोड़ा सा हिंदी में जिसे बोलते हैं शाउ. और जो पित्त प्रकृति है उनका थोड़ा सा फेयर होगा, उनके बॉडी पे तिल मॉल्स ज्यादा होंगे. और कफ वाला जो है वो फेयर होगा. अब फोरहेड है वो कैसा होगा. सो द फोरहेड विल बी स्मॉल इन वात प्रकृति.
medium in Pitta Prakriti, and Kapha will be large and big forehead. टीथ कैसे होंगे वात प्रकृति में? सो क्रुप्ट या अनइवन होंगे, पित्त में इवन या मीडियम साइज, और कफ जो है उसमें इवन और लार्ज साइज के होंगे. आईज, आंखें कैसी होगी? सो eyes will, in Vata Prakriti, eyes will be small, dry and active. In Pitta, it will be medium, sharp, and in Kapha, it will be round, large, and bit liquidy, maybe not dry. And neck कैसा होगा? So वात में small and unsteady, पित्त में moderate, and कफ में large and steady. फिंगर्स एंड टोज कैसे होंगे? सो वात प्रकृति वाले के हाथ पांव की जो उंगलियां हैं वो लंबी और पतली होंगी. पित्त वालों का मीडियम लेंथ होगा उंगलियों का, और कफ वाले जो है वो शॉर्ट, स्टडी एंड स्क्वेरिश टाइप के होते हैं. सी स्काल्प हेयर, सिर के बाल कैसे होंगे? सो वात प्रकृति में पतले, सूखे और जल्दी से टूट जाए ऐसे होते हैं, ब्रिटल्स. और पित्त प्रकृति में लाइट, थोड़े से ऑयली और ब्लॉन्ड कलर के होंगे, और उसमें हेयर फॉल भी ज्यादा होगा और वो जल्दी से ग्रे भी हो जाएंगे पित्त प्रकृति में. कफ प्रकृति में थोड़े से थिक रहेंगे, ऑयली, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे. बॉडी हेयर कैसे होंगे? सो वात प्रकृति का बॉडी हेयर होगा वो स्कैंटी, बहुत ही कम होंगे, डार्क और कर्ली होंगे. पित्त में लाइट एंड कफ में मॉडरेट और सॉफ्ट होंगे. फूड चॉइसेस कैसे होगी? सो बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है कि अपने बॉडी के हिसाब से ही बॉडी कई बार रिस्पॉन्ड करता है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. जैसे कि वात ज्यादा है या वात प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फूड जरूरी है उस हिसाब से बॉडी का क्रेविंग होगा. जैसे कि वात जो है वो उसका बैलेंस कैसे होगा? जो हमने आगे षड्रस देखे, स्वीट, सावर, सॉल्टी, यानी मीठा, खारा, खट्टा, और पंजेंट, बीटर एंड एस्ट्रिंजेंट, मतलब तीखा, कड़वा एंड तूरा. सो वात के लिए देखे तो मीठा, खारा एंड खट्टा रस अच्छा है, और वात जो कि ठंडा है तो उसको बैलेंस करने के लिए वार्म फूड की क्रेविंग ज्यादा होगी, या जिसमें वात इम्बैलेंस होगा उनको भी गरम गरम खाने की इच्छा ज्यादा होगी. अब पित्त के बारे में देखें तो ये कौन से टेस्ट से बैलेंस होता है? तो वही टेस्ट की उसको इच्छा होगी, जैसे कि मीठा, कड़वा और तूरा. और पित्त जो कि गर्म है, हॉट पोटेंसी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ठंडा खाने की इच्छा ज्यादा होगी. कफ का देखे तो कफ कौन से फूड चॉइस से बैलेंस होता है? वही फूड चॉइसेस की इच्छा होती है. सो तीखा, कड़वा और कसेला, ये रस खाने की ज्यादा इच्छा होगी. और वार्म, क्योंकि कफ कोल्ड है, ठंडा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी खुद ब खुद गर्म खाने की इच्छा रखता है. अब इम्यूनिटी कैसी होगी? सो वात पीपल जो होंगे उनकी इम्यूनिटी वीक होगी, वो जल्दी से बीमार पड़ जाएंगे. Pitta will be having moderate immunity, and the Kapha will be having the strongest, because Kapha brings bulk, strength and structure to the bodies. It is responsible for immune system. So Kapha people would be strong, will be having strong immunity. And prone to illness, मतलब कौन सी बीमारी ज्यादा हो सकती है वात प्रकृति वाले को? So pain, anxiety, insomnia, constipation या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ज्यादा रहते हैं बात पर. दे आर वेरी प्रोन टू दिस काइंड ऑफ इलनेसेस. पित्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति है उनको एसिडिटी या स्किन डिसऑर्डर्स ज्यादा रहते हैं. कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को कंजेशन, रिनाइटिस, ओबेसिटी, मतलब मोटापन, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां जल्दी से हो सकती हैं. स्पीच कैसी रहेंगी? सो Vata people would be more talkative. They hardly listen and they have very impatient. They talk fast also. Pitta people talk precisely to the point. उनका
जो भी डिस्क्राइब करेंगे टू द पॉइंट होगा, यहाँ वहां की बातें नहीं होगी। वात पीपल ज्यादा स्टोरी टेलर रहेंगे, उनको ज्यादा बोलने की टेंडेंसी रहती है। और जो कफ पीपल है वो बोलते कम है, सुनते ज्यादा है। वॉइस कैसा रहेगा, तो वात प्रकृति वाले का वॉइस थोड़ा सा अनप्लीजेंट रहेगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा कर्कश रहेगा। पित्त प्रकृति वाले हैं उनका शार्प एंड क्लियर रहेगा। और जो कफ प्रकृति वाले हैं वो उनका हैवी और प्लीजेंट, सुनने में एकदम मधुर मधुर आवाज होंगी उनकी। अब एपेटाइट जो है वो कैसा रहेगा, तो वात प्रकृति का इरेगुलर रहेगा, उनको कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी, कभी कम लगेगी कभी ज्यादा लगेगी। और पित्त प्रकृति वाले जो है उनका एपेटाइट बहुत ही हाई है और कफ वालों का बहुत ही लो है। बॉवेल मूवमेंट कैसा होगा, वात प्रकृति का बॉवेल मूवमेंट इरेगुलर होगा, हार्ड होगा, और वायु जो है वो रूखापन लाता है बॉडी में, स्टमक में। सो जो स्टूल होगा वो भी रूखा हो जाएगा, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से वो सफर होते हैं। पित्त प्रकृति वाला है उसका बॉवेल मूवमेंट रेगुलर और लूज होगा, और कफ प्रकृति वाले का वेरी रेगुलर होगा। सो अब इमोशंस कैसे होंगे वात प्रकृति वाले में, वात प्रकृति पीपल विल बी हैविंग फियर, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। पित्त विल बी हैविंग एंगर, हेट्रेड, courage, and kapha will be having happiness, love, compassion. थॉट पैटर्न कैसा रहेगा, तो वात प्रकृति वाले जो व्यक्ति है वो बहुत ही क्रिएटिव रहते हैं। पित्त वाले जो है ऑर्गेनाइज्ड और प्लानिंग वाले रहते हैं, उनकी सब प्लानिंग करके करना उनको ज्यादा अच्छा लगता है और वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और कफ वाले जो है वो बहुत ही लिथार्जिक होते हैं, क्योंकि कफ जो है वो हैवीनेस लाता है, स्लोनेस लाता है। सो उसकी वजह से वो किसी प्लान के ऊपर, मतलब दे वर लाइक स्टिक टू द प्लान, दे रेजिस्ट टू चेंज। उनको चेंज ज्यादा पसंद नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही चलो, उसके ऊपर ही लगे रहो। जो डोमिनेंट मानस गुना कौन कौन से है इस प्रकृति के हिसाब से, वायु में रजगुण ज्यादा होता है, पित्त में तम और कफ में सत्व। डिसीजन कैसे होए, तो वात पीपल विल बी विम्सिकल, वो ये कभी ये डिसाइड करेंगे कभी फिर सोचेंगे नहीं नहीं ये नहीं अच्छा है ये अच्छा है। सो द डिसीजन पावर इज वेरी वीक। पित्त पीपल है जो उनका एकदम रैपिड, मतलब जल्दी से ही डिसीजन लेंगे और वो बहुत ही क्लियर होंगे अपने डिसीजन में। और कफ प्रकृति वाले जो है वो बहुत ही सोच समझकर विचार के एक डिसीजन पे आएंगे, पर जब वो डिसाइड करेंगे तो उस पे वो बने रहेंगे, वो फर्मनेस होगा उसमें। ड्रीम मोर लाइकली, मतलब ज्यादातर किस टाइप के सपने आते हैं, तो वात प्रकृति वाले हैं वो अपने आप को फ्लाइंग या ऐसे देखते हैं ड्रीम्स में। पित्त वालों को कलरफुल ड्रीम्स आते हैं, और कफ वालों को जो है वो रोमांटिक ड्रीम्स होते हैं मोर लाइकली। अब फ्रेंड्स कैसे रहेंगे, वात प्रकृति वाले के फ्रेंड्स बहुत ही कम होंगे। पित्त वाले जो है वो बहुत ही सिलेक्टिव होंगे, वो जल्दी से दोस्ती नहीं करेंगे, पर करेंगे तो वो बहुत ही मतलब सोच समझ के करेंगे, और काफी वो सिलेक्टिव होंगे कि नहीं इनसे करना है इनसे नहीं करना है वैसा। कफ प्रकृति वाले जो है वो उनके बहुत सारे फ्रेंड होंगे। वर्क पैटर्न कैसा रहेगा, वात इज ऑल अबाउट इमोबिलिटी, दे विल बी लाइक मल्टीटास्किंग, चॉप चॉप चॉप, एक काम किया फिर दूसरा, मतलब वो बहुत ही हड़बड़ी में रहते हैं ऑल द टाइम, और किसी एक वस्तु पे या चीज पे फोकस नहीं कर पाते। पित्त प्रकृति वाले जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, प्लानिंग भी उनकी बहुत ही अच्छी होती है। कफ वाले जो है वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी, वो धीरे धीरे से आराम आराम से काम करेंगे, बहुत ही इजी गोइंग, हैप्पी। और पैसा खर्च करने की आदत ये प्रकृति के हिसाब से कैसी हो सकती है, तो वात वाले जो है वो बहुत ही रेकलेसली पैसा खर्च करेंगे। पित्ता और फ्रूगल, मतलब बहुत ही सोच समझ के वो करेंगे, पर जहां पर जरूरत है वहीं पर करेंगे, दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। एंड कफ पीपल आर माइसर, वो बहुत ही मुश्किल से पैसा खर्च करेंगे, बहुत ही सोच समझ के, और
कभी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ जरूरत हो वहां पर भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। सो ये हमने देखा फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया कि क्या अब आपकी प्रकृति आप समझ पा रहे हो कि आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। कि मेजरली जो है 70 to 75% वो आपका प्रीडोमिनेंट दोषा हो गया। फिर जो सेकेंडरी आता है परसेंटेज की 20 to 25, तो वो सेकेंडरी दोष है। जो और जो बाकी का तीसरा जो है, वैसे तो हम सब में तीनों दोष रहते हैं पर डुअल प्रकृति मेजरली रहती है। तो प्रीडोमिनेंट है वो प्रधान प्रकृति है और बाकी की सेकेंडरी, जैसे कि वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, ऐसे। तो ये प्रकृति जानने के बाद हम ये देखेंगे कि हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सो एक तो पहले देखेंगे कि कॉमनली क्या करना चाहिए सभी प्रकार के प्रकृति के लोगों को। सो वी शुड बी हैविंग warm and freshly cooked food. We should do pranayam, meditation, yoga, relaxing music सुनना, और पंचकर्मा वो भी एक रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास उसका गाइडेंस लेके फिर करना चाहिए। सो उसमें नस्य एंड ऑयल पुलिंग, नस्य मतलब नाक में घी या तेल के ड्रॉप्स डालना। एक प्रतिमर्श नस्य है जो हर लोग कर सकते हैं, जैसे कि गाय का घी है तो वो 2-2 बूंदे अपनी नाक में डाल सकते हैं। तो वो तीनों दोषों के लिए, हर एक दोष के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है। और ऐसा कहा है कि नासा ही शीर्षोद्वारम, मतलब जो नाक है वो शीर का द्वार है। तो आपके सारे मतलब ब्रेन का फंक्शन भी प्रॉपर होगा, सेंसरी ऑर्गन भी अच्छे से वर्क करेंगे। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल। एंड ऑयल पुलिंग मतलब कवल गंडूश, यानी कि मेडिकेटेड ऑयल है या तिल का तेल है, उसको आप मुंह में भर के कुल्ले कर सकते हैं या मुंह में रख सकते हैं, गंडूश यानी। सो उसका भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। अब क्या नहीं करना चाहिए। सो ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, स्टेट यानी बासी जो खाना है वो नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, या प्रिजर्वेटिव वाला जो खाना है या पैकेज्ड फूड है वो हेल्दी नहीं है। और स्लीप साइकिल अपनी अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर स्लीप साइकिल होनी चाहिए। अगर वो इरेगुलर होती है तो तीनों दोष इम्बैलेंस रहते हैं। एडिक्शन नहीं करना है, टोबैको है या ड्रिंक्स है या कैफीन है, वो सब नहीं लेना है। और एक्सटर्नल फोर्सेस से कैसे बचा जाए, या ये जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, उसको कहाँ तक हम कैसे अवॉइड कर सके, जितना हो सके उससे दूर रहे। अब जो हमने देखी कि सिंगुलर प्रकृति वात पित्त कफ, ये सिंगुलर प्रकृति, एक्सक्यूज मी सर, do we have enough time? Yeah, Yes? we have enough time. Okay, thank you. सो हमने देखा कि सिंगुलर प्रकृति वात पित्त कफ, तो उस अगर अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसके बाद इस दोषों को कैसे, मतलब ये जो प्रकृति है, फॉर एग्जांपल आपकी वात प्रकृति है या वात प्रधान प्रकृति है, तो उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। या अगर आपके बॉडी में दोष का इनबैलेंस हो गया, वायु ज्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या पित्त के लिए या कफ के लिए। सो if we look at the food and water, so vata is a laghu, dry. So we should use the opposite characteristics. So should consume heavy food, food mixed with cow ghee and oil. एंड यहाँ पे एक है कि ऑयल कैसा लेना चाहिए। तो ऑयल जो कच्ची घानी का ऑयल है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, जो रिफाइंड ऑयल है वो नहीं लेना चाहिए। और एक देश के हिसाब से भी बताया गया है खान पान आयुर्वेद में, जैसे कि अपर नॉर्थ पार्ट में है, वहां पे मेजरली मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता है, मिडिल पार्ट में जो है पीनट ऑयल यूज किया जाता है, और जो सदर्न एरिया में है इंडिया में, वहां पे कोकोनट ऑयल यूज किया जाता है, और तेल जो है वो सबसे अच्छा है। तो इस हिसाब से देश के हिसाब से भी एक आयुर्वेद में एक डिस्क्रिप्शन है कि उसी हिसाब से आहार विहार होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने
जो आप जहाँ पर रहते हो वहां का खाना, वहां उसी हिसाब से फल या सब्जियां मिलती है जो आपके बॉडी के लिए अच्छा है। तो आपको प्रादेशिक फूड यानी कि लोकल फूड ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ना ही कि दूसरों मतलब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके या ऐसे करके हम कॉन्टिनेंटल फूड जो खाते हैं वो आइडियली आयुर्वेद के हिसाब से नहीं बताया गया है। सो वात प्रकृति वाले हैं, उनको हैवी फूड गाय का घी मिला के या स्पाइसेस मिला के खाना चाहिए। और इनका एपेटाइट बहुत ही इरेगुलर होता है, तो जितनी जब भूख हो उतना ही खाना खाना चाहिए। अध्यशन यानी कि ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, वो किसी भी दोष में या किसी भी प्रकृति वाले को ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। और बात प्रकृति वाले जो लोग हैं वो अगर मिलेट्स और पल्सेस जो कंज्यूम करते हैं तो उनको अंदर घी या तेल मिला के खाना चाहिए, क्योंकि पल्सेस और मिलेट्स जो है वो ड्राइनेस लाते हैं, हेल्दी है पर ड्राइनेस लाते हैं, तो उनको ऐसे ऑयल या घी मिक्स करके खाना चाहिए। और पानी तो उनको ल्यूकवार्म वाटर पीना चाहिए, जैसे कि वात बैलेंस हो। अब पित्त प्रकृति वाले हैं, उनको हैवी मिक्स्ड विथ काउ घी गाय का घी बहुत ही अच्छा है पित्त प्रकृति वालों के लिए। और पित्त जो कि हॉट है तो उसमें ज्यादा स्पाइसेस नहीं यूज करने हैं। तो कौन से स्पाइसेस वो यूज कर सकते हैं, तो सिनेमन है, कार्डेमन है या क्लोव है, ये यूज कर सकते हैं। दूध इनके लिए अच्छा है। खीर है, जो चावल की खीर है या काफी और सारी भी खीर है वो भी वो कंज्यूम कर सकते हैं, उससे भी पित्त का शमन होता है। गुलकंद है या काला मुनक्का है या सौंफ है, ये सब चीजें उनके लिए अच्छी है। ज्यादा गर्म चीजें पित्त प्रकृति वालों के लिए अच्छी नहीं है। और क्योंकि पित्त हॉट है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो नेचुरली कोल्ड वाटर है वो पीना चाहिए, कि अर्धन पॉट में रखा हुआ जो है वो आइडियली अच्छा है उनके लिए। अब कफ वालों के लिए, क्योंकि कफ हैवी है, गुरु है, तो उसको बैलेंस करने के लिए लाइट फूड लेना चाहिए और स्पाइसेस उसमें ले सकते हैं ज्यादा। और ड्राई फूड लेना है, क्योंकि कफ जो है थोड़ा सा लिक्विड ही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ड्राईनेस लाए वैसा फूड उनके लिए अच्छा है। फास्टिंग भी कफ प्रकृति वाले के लिए अच्छा है। और हनी कफ को बैलेंस करने के लिए बेस्ट माना गया है। और कफ क्योंकि कोल्ड है तो उसके लिए ल्यूकवार्म वाटर अच्छा है। अब टेस्ट देखे, जैसे कि हमने षड्रस देखे कि मीठा, खट्टा, खारा, कड़वा, तीखा और तुरा, ये 3 रस है। और आयुर्वेद ने तो बोला है कि ये तीनों रसों का बैलेंस करके ही हमेशा खाना खाना चाहिए। अपना आहार जो है वो षड रसात्मक होना चाहिए। पर उसमें भी अगर वात प्रकृति वाले हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए मीठा, खारा और खट्टा रस ज्यादा अच्छा है। पित्त के लिए जो है वो मीठा, कड़वा और तूरा रस। और कफ के लिए जो है वो कड़वा, तूरा और कसेला, ये रस अच्छा होता है। अब रेस्ट और एक्सरसाइज के बारे में इन प्रकृति के लिए क्या बोला है, तो वात पीपल शुड बी हैविंग डिसिप्लिन लाइफ, क्योंकि मोबिलिटी उसका एक गुण है वायु का। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको स्टिलनेस या स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। तो वो कैसे ला सकते हैं, तो एक रूटीन या डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, प्लानिंग वाली लाइफ जीनी चाहिए। और इनफ रेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि ये लोग ज्यादा जगेंगे, नींद नहीं लेंगे तो भी उनका वायु जल्दी से बढ़ सकता है। और एक्सरसाइज बहुत ही लाइट करनी है। आयुर्वेद में एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है कि अर्ध शक्ति व्यायाम, यानी कि जब तक आपको पसीना नहीं हो या जब तक आपकी सांस नहीं फूले तब तक ही व्यायाम करना चाहिए किसी भी प्रकृति वाले को। तो अब पित्त के बारे में देखें तो पित्त प्रकृति के वालों को अर्ली टू बेड, मतलब जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। क्योंकि अगर वो रात को जगेंगे तो जैसा हमने साइकिल ऑफ द डे में देखा कि वो 10 to 2 का जो टाइम है वो पित्त काल है, अगर वो तब जगते हैं, ऑलरेडी वो पित्त प्रकृति वाले हैं और वो पित्त काल में फॉल करते हैं, तो ज्यादा पित्त बढ़ेगा, तो काफी सारी बीमारियां उनको होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। वैसे तो जल्दी सोना जल्दी उठना हर एक प्रकृति के लिए है, पर पित्त के लिए ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और एक्सरसाइज जो है वो मॉडरेटली करनी चाहिए, हैवी या लाइट नहीं करनी चाहिए। कफ वाले जो है उनको रात्रि जागरण, मतलब रात को देर तक जागना और स्ट्रेस अच्छा है। अब आयुर्वेद
में ऐसा क्यों बताया गया है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कफ बहुत ही हैवी है। कफ वाले जो लोग हैं बहुत ही लिथार्जिक या लेजी, बहुत ही आलसीपन उनमें आ जाता है। तो अगर वो रात को थोड़ा सा जगते हैं या थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि बहुत ही वो इजी गोइंग होते हैं, कभी केयरलेस भी हो जाते हैं, तो ये दोनों चीज करने से थोड़ा सा कफ बैलेंस होता है। तो इसके लिए रात्रि जागरण और स्ट्रेस कफ वालों के लिए बताया गया है, और इनको हैवी एक्सरसाइज करनी है। अब अब सबसे पहले तो आपके बॉडी में कुछ इम्बैलेंस है, या आपकी प्रकृति के हिसाब से जो भी ये आहार विहार बताए हैं, जैसे कि दिनचर्या है या ऋतुचर्या है, ये सब करने के बाद भी अगर आप में बैलेंस नहीं आता है, फिर भी आप रोग होता है, तो उसके लिए आयुर्वेदिक फिजिशियन आपको पंचकर्म भी सजेस्ट करते हैं। पर ये जो है वो उनके अंडर में ही होना चाहिए, वो आप घर पे नहीं कर सकते। तो हाँ, एक ये है होल बॉडी मसाज, जैसे कि वो वायु में मेनली बताया गया है, वो आप घर पे करवा सकते हो। तो वायु जो कि ड्राई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए होल बॉडी मसाज बहुत ही अच्छा है, वो डेली होना चाहिए। तो बहुत अच्छा रहता है वात प्रकृति वाले को। पर अभी की लाइफ में अगर इतना पॉसिबल नहीं है डेली होल बॉडी मसाज करना, तो हेड फुट मसाज एंड ऑयल इन द ईयर, मतलब सिर पे तेल डालो, पैर के तलवों में आप मसाज कर सकते हो, या कान में ऑयल, इतना भी अगर रोज करो तो भी अच्छा है वायु को बैलेंस करने के लिए। फिर उसके बाद मेडिकेटेड स्टीम यानी कि स्वेदन बोलते हैं जिसको, पंचकर्म के अंतर्गत वो किया जाता है। बस्ती जो कि एनल रूट से दी जाती है, तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट है वायु के लिए। और शिरोधारा, नस्य, ऑयल पुलिंग, ये सब वायु के लिए बहुत अच्छा। और वेस्टर्न एक बताया गया है जिसमें कि जहां पर पेन होता है, जैसे कि हाथ में अगर पेन हुआ है तो वहां पे कपड़ा बांधो, तो उससे भी आराम मिलता है। ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट बताया गया है, जिसको वेस्टर्न के नाम से जानते हैं आयुर्वेद में। पित्त वाले जो है उनके लिए विरेचन यानी थेराप्यूटिक पर्गेशन करवाया जाता है, जिससे कि एक्सेस पित्त है वो एक्सपेल हो जाए बॉडी से। फिर रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड लेटिंग, कि जो आपके बॉडी में पित्त विकार, पित्त प्रकृति वाले जो होते हैं उनको रक्त विकार यानी स्किन डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं, तो एक रक्त मोक्षण भी एक चिकित्सा है। और रक्त मोक्षण में एक आयुर्वेद में एक ये भी है, जलों का डिश थेरापी है। उसका ब्यूटी ये है कि वो आपकी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वही सक करता है, प्योर ब्लड कभी नहीं सक करता। और एंटीकोएगुलेंट भी है उसके लाड़ में, तो वो सारे बेनिफिट भी है, तो वो ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। पर ये सारे पंचकर्म ट्रीटमेंट शुड बी डन अंडर द आयुर्वेदिक फिजिशियन ओनली। फिर शिरोधारा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पित्त जो है वो बहुत ही गर्म है, उसमें अग्रेशन ज्यादा रहता है, तो उसके लिए शिरोधारा जो ऑयल पोर करते हैं हेड पर से, तो वो बैलेंस करने के लिए अच्छा है। नस्य और ऑयल पुलिंग भी उसमें रेकमेंडेड है। वमन, जो कफ में वमन करवाते हैं, कि थेराप्यूटिक इमेसिस है, तो उसमें से उससे कफ का एक्सपेलेशन जल्दी से होता है। ड्राई मसाज, कफ क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड ही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ड्राई उपटन जैसे बोलते हैं, कि आप बेसन के आटे से या मूंग के आटे से कर सकते हैं। फिर नस्य और ऑयल पुलिंग भी उसके लिए अच्छा है। अब ये सारी चीजों में आप नस्य घर पे कर सकते हैं, जिसे प्रतिमर्श नस्य कहते हैं, जिसमें गाय का जो घी है, जो बिलोने का घी है, उसको एवरीडे आप रात को नाक में 2-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। इससे मेमोरी भी अच्छी होती है, फोकसिंग भी अच्छा रहता है। अब ये गाय तीनों, गाय के घी के अलावा गाय के घी के अलावा कौन सा तेल डाल सकते हैं नश्या में? अणु तेल डाल सकते हैं सर, मेडिकेटेड पार्डन? अणु तेल होता है जो मेडिकेटेड होता है। अणु तेल। अणु तेल, हाँ, ओके। अणु तेल या तिल तेल भी डाल सकते हैं, पर वो पित्त में नहीं डाल सकते, क्योंकि तिल तेल जो है गर्म है, वो वायु और कफ में डाल सकते हैं। ओके। अब क्या अवॉइड करना चाहिए? वायु में हमने देखा कि जो 3 रस है, मीठा, खट्टा और खारा, वो 3 उसके लिए अच्छे हैं। और बाकी के जो 3 है, तीखा, कड़वा और कसेला, ये रस उसके लिए अच्छे नहीं है। तो या कम क्वांटिटी में कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जैसा
वायु का सिम्टम्स जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से डिसाइड करना है। अब ड्राई, रॉ और कोल्ड फूड उसके लिए अच्छा है। फिर विंडी और कोल्ड वेदर वायु के लिए अच्छा नहीं है, उससे वायु बढ़ सकता है। और ये वात प्रकृति वाले पीपल होते हैं, वो जो मल्टीटास्किंग होते हैं, एक साथ काफी सारी चीजें करने का उनको हैबिट रहता है, तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग से वायु बढ़ता है। इनको हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करने से भी वायु एग्रीवेट होता है, स्ट्रेस से भी वायु एग्रीवेट होता है, रात्रि जागरण से भी वायु एग्रीवेट होता है। तो ये सारी चीजें जो वात प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनको अवॉइड करनी है। अब पित्त प्रकृति वाले देखें तो उनको कौन सा रस अवॉइड करना है, टेस्ट अवॉइड करना है, तो खट्टा, खारा और तीखा रस जो है वो उनके लिए नहीं अच्छा है। और एक्सेस स्पाइसी फूड भी नहीं अच्छा है, फ्राइड फूड भी उनको हार्मफुल है, फर्मेंटेड फूड भी पित्त बढ़ाता है। और पित्त वाले व्यक्ति को फास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पित्त वाले जो है उनको बहुत ही जल्दी से भूख लगती है, उनका डाइजेस्टिव फायर बहुत ही अच्छा होता है। अगर वो फूड नहीं लेते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उसमें उस स्थिति में क्या होता है कि जब बॉडी में फूड नहीं होता है तो जो डाइजेस्टिव फायर है वो धातुओं को पचाता है, मतलब जो अपने बायोलॉजिकल टिश्यू है उनको डाइजेस्ट करता है, तो वो बहुत ही हार्मफुल है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोग डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, कुछ जाने बिना, कि अपनी प्रकृति को पहचाने बिना। अगर आपकी पित्त प्रकृति है या वात प्रकृति, आप डाइट प्लान फॉलो करते हो और जब धातु का पचन होता है, तो जब फायर को जब कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, तो रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये भी लेडी में ये भी देखने को मिलता है कि उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होके, क्योंकि लास्ट धातु क्या है, आर्तव यानी ओवम या मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें भी फास्टिंग करने से उसके साइड इफेक्ट में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो ये सारी चीजें सोच समझ के करनी चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, पित्त जो कि गर्म है तो उसको एक्सपोजर टू हीट नहीं होना चाहिए, रात को देर तक नहीं जगना चाहिए। अब कफ वाले जो देखे तो उनको मीठा, खारा और खट्टा रस उनके लिए हानिकारक है। कफ क्योंकि हैवी है, गुरु है, तो उसके लिए हैवी फूड नहीं अच्छा, उनको लाइट फूड ही लेना चाहिए अपने एपेटाइट के हिसाब से। और फैटी फूड नहीं लेना है, ठंडा खुराक नहीं खाना है और ओवर ईटिंग नहीं करना है। तो ये 3 दोष के हिसाब से हमें अपनी लाइफस्टाइल उस हिसाब से जीनी चाहिए। अब डुअल दोष देखे, जैसे कि आपकी डुअल प्रकृति, मेनली सबकी डुअल ही होती है, सिंगुलर प्रकृति भी बहुत रेयर होती है। वात पित्त, पित्त कफ या वात कफ, इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। या अगर 2 जन की वात पित्त है तो उसमें या वात प्रधान पित्त रहेगा या पित्त प्रधान वात रहेगा। तो उसमें हम कैसे बैलेंस ला सकते हैं? तो first of all we see traits to bring balance, how we bring balance to our body if we are vata pitta type people. So मीठा जो है, इसमें कॉमन अगर देखें तो कॉमन चीजें क्या है कि जो दोनों दोषों के लिए अच्छी है, तो वायु और पित्त दोनों के लिए मीठा रस अच्छा है, हैवीनेस या हैवी फूड अच्छा है, स्टेबिलिटी या इमोबिलिटी अच्छी है। तो ये एक ध्यान में रख के हम थोड़ा सा लॉजिकल डिसीजन लेके ये डिसाइड कर सकते हैं। अब जो फूड है वो कैसे लेना है वात पित्त प्रकृति वाले को, तो हैवी लेना है, उसमें घी या ऑयल मिला के ले सकते हैं, और टाइम पे खाना खाना है। गाय का बिलोने का घी बहुत ही अच्छा है, गाय का दूध, बफलो मिल्क भी अच्छा है इनके लिए, क्योंकि एपेटाइट अच्छा रहता है, पित्त है साथ में तो, और स्वीट टेस्ट अच्छा है। अगर पित्त कफ में बोले तो उनका जो कॉमन उनके लिए क्या अच्छा है, तो ड्राइनेस अच्छी है, क्योंकि कफ में भी थोड़ा सा ऑयलीनेस ज्यादा रहता है और पित्त में भी स्नेह, मतलब लाइट स्लाइट ऑयली रहता है, तो उसके लिए ड्राइनेस अच्छा है उसको बैलेंस करने के लिए। सो कौन सा फूड कंज्यूम करना चाहिए, तो रोस्टेड लेना चाहिए, लेस फैटी लेना चाहिए, और गाय का घी पित्त और कफ दोनों के लिए, गाय का घी वैसे तो तीनों दोषों के लिए बहुत ही अच्छा है। और कौन सा रस नहीं लेना चाहिए, तो कड़वा और तुरा रस नहीं लेना चाहिए, कसेला रस।
और वात कफ प्रकृति वाले के लिए क्या कॉमन चीज ऐसी है, तो हॉट, क्योंकि दोनों ही ठंडे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हॉट जो गुण है उसको अप्लाई करना चाहिए आहार विहार में। तो उसमें देखिए कि फूड कैसा लेना है, तो हमें वार्म फूड लेना है, और गाय का घी उसमें बहुत ही अच्छा है। अब रेस्ट और एक्सरसाइज कैसे करना है, सो वात पित्त वाले हैं, क्योंकि इसमें वात साथ में है, तो डे नैप ले सकते हैं वो लोग, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। पित्त कफ वाले हैं उनके लिए मॉडरेट एक्सरसाइज सही है, और वात कफ वाले हैं उनके लिए भी मॉडरेट एक्सरसाइज सही है। अब ये दोनों तीन डुअल दोषा है, तो उसमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि वात कफ है, तो आप कफ का ध्यान में रख के जो कर रहे हो या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उससे वायु बढ़ेगा, तो कफ को बैलेंस करते करते वायु भी नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी एक ध्यान में रखना है। अब पंचकर्म क्या करना है, सो फॉर वात पित्त पीपल, बस्ती, नस्य एंड ऑयल पुलिंग, पित्त कफ नस्य एंड ऑयल पुलिंग, और वात कफ के लिए भी वो अच्छा है। और स्पेशल केयर क्या करनी है कौन से सीजन में इन दोषों की, सो स्पेशल केयर क्या करनी चाहिए, मतलब वात पित्त है तो मॉनसून में वात भी एग्रीवेट होता है, तो मॉनसून या विंटर और समर में उनका स्पेशल केयर करना चाहिए। पित्त कफ है तो उसमें समर और विंटर में स्पेशल केयर चाहिए, और वात कफ है उसमें भी मॉनसून और विंटर में स्पेशल केयर चाहिए। अब इसमें क्या अवॉइड करना है, तो वात पित्त के लिए हैवी एक्सरसाइज, रात्रि जागरण, स्पाइसी फूड, फर्मेंटेड फूड एंड सावर टेस्ट, मतलब खारा टेस्ट अच्छा नहीं है। पित्त के लिए सावर एंड सॉल्ट, पित्त कफ के लिए सावर एंड सॉल्टी टेस्ट, एंड वात कफ के लिए कोल्ड एंड विंडी वेदर अच्छा नहीं है, या कोल्ड पोटेंसी वाला जो फूड है वो अच्छा नहीं है। अब ये हमने जो प्रकृति हमने जानी कि कौन सी प्रकृति है, पर दिस विल गिव यू अ रफली आइडिया अबाउट योर प्रकृति। For precise Prakriti Parikshan, you should visit any nearby registered Ayurvedic practitioner who do Nadi Pariksha. So what is the beauty of Nadi Pariksha? This is the authentic way to diagnose. It tells you about your Prakriti, what kind of dosa imbalance or what kind of diseases you have, or what kind of emotional imbalance do you have. And so Ayurveda is an enlightened system of healing. How it is so? So अगर फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, वो तीन प्रकृति वालों को अलग अलग है, वायु प्रकृति वालों को, पित्त को और कफ को, पर तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप से होगा, एक साथ ट्रीटमेंट नहीं रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि हेडेक हो रहा है, ये तो प्रकृति के हिसाब से, पर एक ही डिसीज है, उसमें भी क्या रूट कॉज क्या है दोष के इम्बैलेंस का। जैसे कि हेडेक है तो कॉन्स्टिपेशन यानी वायु के से हेडेक हो रहा है, पित्त बढ़ने से हेडेक हो रहा है, या साइनोटाइसिस या रिनाइटिस से हेडेक हो रहा है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट अलग होती है। सो व्हाई दिस इज आयुर्वेदा इज एन एनलाइटन सिस्टम, सो एवरीवन इज यूनिक, हम सब जो है वो यूनिक है, भले ही एक जैसी प्रकृति हो, फिर भी सबका ट्रीटमेंट, जैसे कि वात पित्त हो तो भी दोनों का ट्रीटमेंट अलग से होगा। सो yes, I have taken the references from Charak, Shushruta and Ashtanga Hriday. Thank you so much. Thank you for patient listening. Thank you so much.